آزاد کشمیر میں پرتشدد احتجاج روکنے کے لیے مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ حکومتی ٹیم آج رات مظفر آباد میں ہی قیام کرے گی۔ کل نتیجہ خیز اعلان متوقع ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں انشاءاللہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں گے۔ احسن اقبال اور قمر زبان قائرہ نے بھی امن رکھنے کی پر زور دیا ہے۔ بولے ایسی کوئی چنگاری نہ لگائی جائے جس سے دشمن ملک فائدہ اٹھائے۔ ماحول میں بات چیت ہوئی اور پھر ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے دوسرے ساتھیوں سے جا کے ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر آپ کو جواب دیں گے، اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے جو ان کے جنون ایشوز ہے وہ ریزالو ہو جائے۔ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت سے اور آزاد جموں کشمیر کے عوام سے کہوں گا ہمیں کوئی ایسی چنگاری نہیں لگانی چاہیے کہ جس سے کوئی ہمارے ملک کا دشمن فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے امیج کو خراب کرے۔ بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کو حل کرنا، اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ حقوق کے لیے لڑائی ہے، حقوق ملیں گے، جو ڈائلاگ سے مل جائے وہ لڑکے نہیں لینا چاہیے، اور اس وقت امن کی ضرورت ہے۔ ہم اس کا انشاءاللہ بہترین علاج نکالیں گے، لیکن صبر سے رہیے اور امن کا دامن نہ چھوڑیے۔ ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم کسی صورت آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ حکومت کی بارہا مذاکرات کی پیشکش کے باوجود آزاد کشمیر میں پرتشدد مظاہرے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی آڑ میں شرپسندوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دیں، پولیس اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں شرپسندوں کے مذموم مقاصد کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ وفاقی پولیس نے احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری کی آڑ میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر دھاوا بول دیا۔ اندر گھس کر صحافیوں پر تشدد، کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ کی۔ پریس کلب ممبران جمع ہوئے تو پولیس عقبی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے کر آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری خود نیشنل پریس کلب پہنچے، واقعے پر عہدیداران سے معافی مانگی۔ اسلام آباد سے قمر المنور کی رپورٹ۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرین کی گرفتاری بہانہ، این پی سی نشانہ۔ وفاقی پولیس نے پریس کلب پر یلغار کر دی، کیفیٹیریا میں توڑ پھوڑ، صحافیوں پر تشدد۔ پولیس نے مظاہرین کے نام پر صحافیوں کی ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ صدر پی ایف یو جے کا آئندہ لائحہ عمل مشاورت سے طے کرنے کا اعلان، کہا ملکی تاریخ کے آمرانہ ادوار میں بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ آج پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین اور بدترین واقعہ ہے۔ ہم نے مارشل ادوار بھی دیکھے ہیں، ہم نے ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس بھی دیکھی ہے، کبھی انتظامیہ یا پولیس پریس کلب کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ غلطی کا احساس ارباب اختیار کو بھی ہو گیا، لیکن پانی سر سے گزر جانے کے بعد میں بھی اس واقعے کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ اس کے ساتھ غیر مشروط پریس کلب، آپ کی انتظامیہ اور تمام صحافیوں سے معافی پولیس کی طرف سے، اور ایز اے اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر میں حاضر ہوا ہوں اس معافی کے لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور پولیس حکام نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ذمہ داران کے خلاف انضباطی کارروائی کی یقین دہانی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واقعہ افسوسناک قرار دیتے ہوئے مکمل تفتیش پر زور دیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر عمر بن آصف کے ساتھ قمر المنور، سما، اسلام آباد۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے دھاوے پر صحافی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ پی ایف یو جے، سی پی این ای اور ایم این نے شدید مذمت کرتے ہوئے واقعہ دہشت گردی قرار دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کا دھاوا اور تشدد، صحافی تنظیمیں سراپا احتجاج۔ پی ایف یو جے، سی پی این ای اور ایم این کی شدید مذمت، واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ مشترکہ بیان میں صحافی تنظیموں نے کہا، چند دنوں سے حکومت کی جانب سے کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے کہ عنوان سے میڈیا کو اشتہارات جاری کیے گئے جس میں دھمکی آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے رپورٹرز، فری لانسرز اور سماجی تنظیموں کو ریاست مخالف فہرست میں کھڑا کر دیا گیا، جس کا مقصد صحافیوں کی کردار کشی کرنا، دباؤ میں لانا اور اظہار رائے کو سلب کرنا ہے۔
जिस मीडिया ने जंग के दौरान जिम्मेदारी से कौमी मफाद को मद्देनजर रखा, उसी से मुंसलिक अहम जुज रिपोर्टर और फ्रीलांसर्स को दहशतगर्दों से तशबीह देना आजाद सहाफत के नजरिए की खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान हर शहरी को मालूमात तक बिला रुकावट रसाई का हक देता है। पेका एक्ट के बेदरग इस्तेमाल ने सहाफी तंजीमों के खदशात दुरुस्त साबित कर दिए। दर्जनों सहाफियों पर मुल्क भर में पेका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इसकी आड़ में हुकूमती नाकदीन को दबाने और इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पेका की आड़ में दानिस्ता खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन इक़दामात के खिलाफ हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी और आईनी और कानूनी जिद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस के धावे और सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में सहाफी तंजीमों का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, मुल्क भर के प्रेस क्लब्स में आज स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब पर अटैक प्रेस फ्रीडम पर अटैक है। ये पाकिस्तान भर के 40,000 सहाफियों के चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। आज अगर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का प्रेस क्लब पुलिस से महफूज नहीं रहा तो फिर समझा जाता है कि अब पाकिस्तान का कोई प्रेस क्लब पुलिस गर्दी से महफूज नहीं रहेगा। जुम्मे के रोज इस बदतरीन वाक़या के खिलाफ कल पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जाएगा। नेशनल प्रेस क्लब समेत पाकिस्तान भर के तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे, एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। इजराइल का मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा, तमाम कश्तियों को कब्जे में ले लिया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 400 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत, डिपोर्ट करने की तैयारियां जारी हैं। इसराइल मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की आलमी कोशिश में रुकावट बन गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की तमाम कश्तियों को कब्जे में ले लिया। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता शब आलमी तंजीम की कश्तियों पर पानी की तोपें चलाई, अरकान को हिरासा भी किया और संगीन नताइज की धमकियां दी। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग, पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक समेत सैकड़ों कारकुनान को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद को पोर्ट मुंतकिल किया गया, जहाँ इन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड की गई वीडियो में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। इधर हमास ने गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले और इंसानी हुकूक के कारकुनों को गिरफ्तार करना गजा की और दहशतगर्दी करार दिया। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मुतालबा किया वो कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मूथ फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तानियों को खराज तहसीन, कहा पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के मुताबिक इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। स्मूथ फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। ग्लोबल फ्लोटिला पर इजरायली हमले के खिलाफ आलमी बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। कोलंबिया की हुकूमत ने इजरायली सफारतकारों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। बरतानवी वजारत खारजा ने भी ग्लोबल फ्लोटिला पर इजरायली हमले पर तशवीश का इजहार किया है। ईरानी वजारत खारजा ने आलमी इमदादी बेड़े समूद पर हमला खुली दहशतगर्दी करार दिया। स्पेन का इजरायली सफीर को तलब करके एहतजाज। कतरी वजारत खारजा ने बयान में इजरायली इकदाम को खित्ते की सलामती और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा में इंसानी इमदाद की महफूज बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ग्लोबल फ्लोटिला पर हमले की मज़म्मत। अंकारा में खिताब करते हुए कहा, ग्लोबल फ्लोटिला पर हमला साबित करता है नेतन्याहू अमन नहीं चाहते। फ्लोटिला पर हमला करने के बाद इसराइल के जराइम को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ग्लोबल फ्लोटिला के मामले पर तुर्की की गहरी नजर है। हमारी अवलीन तरजीह गजा में खून रेजी रोकना और इमदाद पहुंचाना है। हम अपने फलस्तीनी भाइयों बहनों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर एर्दोगान ने कहा, देर पा जंग बंदी के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम जारी रखेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली हमले के बाद दुनिया भर में एहतजाज। कई ममालिक में अवाम सड़कों पर निकले। स्पेन, मलेशिया, तुर्की, इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में रैलियां निकाली गईं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर हमला नामंजूर। इसराइली सफाकियत के खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर आ गए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ स्पेन में अवाम ने एहतजाज किया और आलमी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में भी ग्लोबल फ्लोटिला के अरकान से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई।
हजारों अफराद शरीक हुए। तुर्किया के शहर इस्तांबुल और दीगर शहरों में अमरीकी कौंसिल खानों के सामने भी एहतजाज किया गया और इसराइली इक़दाम के खिलाफ नारे लगाए गए। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम और अर्जेंटाइन में भी शहरियों ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ रैलियां निकाली और इसराइली जाहिरियत को नाकाबिले कबूल करार दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इजरायली हमले और गिरफ्तारियों के खिलाफ कराची में भी जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शुरका ने फलस्तीनियों पर भरपूर इजहार यकजहती किया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी सड़कों पर नुमाइश चौरंगी पर एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने इसराइली इक़दाम की शदीद मजम्मत की। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा गिरफ्तार अफराद की फौरी बाजियाबी के लिए किरदार अदा करे। आज अगर कमजोर एहतजाज कर रहे हैं, सदा एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? प्रेस क्लब के बाहर ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और फलस्तीन कमेटी की जानिब से भी एहतजाज किया गया। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने शाह खुरासान से नुमाइश चौरंगी तक रैली निकाली। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। और अब बात करें पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की। जो पंजाब की तजलील करेगा उसे जवाब भी मिलेगा। इस पर कभी मुआफी नहीं मांगूंगी। मरियम नवाज डट गईं। कहा, पंजाब की बात वज़ीर आला नहीं तो फिर कौन करेगा? मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। जो मेरे पास वसाइल हैं, तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? तो ये कह दे कि आपके जो मुहाफिज हैं वर्दी के अंदर, उनके सर तोड़ दो, उनको कीलों वाले डंडे मारो, उनकी आंखें फोड़ दो, तो इस बात में कान न धरो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया। और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। और ये बयानियां नैरेटिव, अगर नैरेटिव जो है वो परफॉर्मेंस पीछे रह जाए, नैरेटिव आगे चला जाए, तो मुल्क के साथ वो होता है जो 2018 से लेके 2022 तक हुआ है। मुझे पता नहीं मेरे वज़ीर आला रियासत के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का बयानिया वाज़ेह नहीं। कमरे में कहते हैं आपके साथ हूँ, बाहर आकर कहते हैं पार्टी के साथ हूँ। ये भी कहा, इनके अपने लोग कहते हैं कि वजारतों के रेट फिक्स हैं। इस वक्त हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर इंसर्जेंसी है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। मुझे ये पता नहीं है कि मेरे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस जो है वो रियासत के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। उनका बयान अभी तक क्लियर नहीं है। कमरे में जाते हैं तो कहते हैं मैं आप लोगों के साथ हूँ, बाहर जाते हैं कहते हैं मैं पार्टी के साथ हूँ। लिहाजा उनको चाहिए कि आए फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दें। गलती थी कि नाहल टीम चुनी, पहले भी कहीं जो है वो लोगों को निकाला गया और नयों को भर्ती किया गया, और जिसको बनाया जाता है वो खुद इनके अपने लोग कहते हैं कि उसके अपने रेट फिक्स होते हैं कि कुछ अरसे के लिए बनाया जाता है। किसी को साल की अपॉइंटमेंट होती है, किसी की 2 साल होती है, और फिर उसके बाद एक रेट फिक्स किया जाता है तो दूसरों को बनाया जाता है। या फिर वो करप्ट थे, अगर करप्ट थे तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, मदीने की रियासत में करप्ट की क्या सज़ा होती है तो वो भी बताएं। और अफसोसनाक खबर है कोयटा से, जहां पर इलाके सरियाब में बादीनी पुल के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लड़ाई की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात कर रहे हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।